ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آلیان ایک امیر خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جو ہمیشہ اپنے شہر کے غریبوں کی مدد کرتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کے شہر میں ایک یتیم خانہ جہاں پر بہت سے لاوارث لوگ پرورش پا رہے تھے۔ آلیان اسی یتیم خانے میں اکثر خیرات دینے کے لیے جایا کرتا تھا۔ آلیان امیر ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل بھی تھا۔ اسے کوئی بھی غریب دکھائی دیتا تو اس کا دل پسیج جاتا تھا اور وہ فوراً سے اس کی مدد کرنے لگتا تھا۔ یہ ایک خوشگوار صبح تھی جب آلیان ایک یتیم خانے میں خیرات دینے گیا تھا۔ آلیان ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ آج جب آلیان یتیم خانے میں خیرات بانٹ رہا تھا تو اس کی نظر ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم چہرے پر پڑی۔ آلیان کے لیے یہ چہرہ اجنبی سا تھا۔ آلیان کا خیرات دیتے ہوئے یتیم خانے کی وارڈن سے خوبصورت چہرے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ آلیان پہلی ہی نظر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ معلومات حاصل کرنے پر آلیان کو معلوم ہوا کہ وہ خوبصورت حسین چہرہ کچھ دن پہلے ہی یتیم خانے کی زینت بنا تھا۔ فائزہ بہت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ آلیان نے فائزہ کو پہلی دفعہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ فائزہ نے آلیان کے دل کو چھو لیا تھا۔ وہ سب کو خیرات میں کچھ نہ کچھ دے رہا تھا مگر فائزہ اس سے کچھ بھی لینے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ شرما رہی تھی۔ آلیان اسی انتظار میں تھا کہ وہ لڑکی اس سے خیرات لینے کے لیے آگے آئے اور آلیان اس کی خوبصورتی کو نزدیک سے دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ فائزہ اس کے قریب خیرات لینے نہیں آئی تو اس نے وہاں کی وارڈن سے کہا کہ اس لڑکی کو بھی بھیجا جائے۔ وارڈن نے آلیان کو بتایا کہ وہ نئی آئی ہے، خیرات لینے سے شرما رہی ہے۔ آلیان نے یتیم خانے میں بے شمار لڑکیاں دیکھی تھی مگر فائزہ جیسی خوبصورتی اس کی نظروں سے آج تک نہیں گزری تھی۔ آلیان اپنے دل کے ہاتھوں بے حد مجبور تھا۔ آلیان یتیم خانے سے واپس چلا گیا لیکن اس کی نظروں کے سامنے فائزہ کا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ اس کا جی ایک منٹ کے لیے بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ فوراً جائے اور فائزہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا لے۔ آلیان کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جو ٹھان لیتا تھا وہ کر گزرتا تھا۔ اب فائزہ آلیان کے دل و دماغ پر چھا چکی تھی، اسی لیے آلیان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فائزہ کو اپنے نکاح میں لے لے گا اور دلہن بنا کر اسے اپنے گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے آئے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے یتیم خانے میں فائزہ کے بارے میں بات کی تھی۔ وہاں کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا کیونکہ آلیان کے اس یتیم خانے پر بہت احسانات تھے۔ یتیم خانے کا پورا عملہ فائزہ سے آلیان کے لیے بات کر رہا تھا۔ سب اس کو سمجھا رہے تھے کہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو آلیان کے اس پروپوزل کو ٹھکرائے گا۔ آلیان جیسا امیر بزنس مین سے شادی کرنے کے لیے یتیم خانے کی ہر لڑکی مرتی تھی۔ سب نے مل کر اس رشتے کے لیے فائزہ کو آمادہ کیا تھا۔ فائزہ بہت شرمیلی اور نازک مزاج لڑکی تھی۔ فائزہ نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ جس طرح کی سختیاں اور پریشانیاں فائزہ جھیلتی آ رہی تھی اور ارد گرد کے ماحول سے تنگ تھی، اس نے ایک منٹ نہ لگایا تھا اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ آلیان فائزہ کو بھی کہیں نہ کہیں اچھا لگتا تھا۔ آلیان شادی کر کے فائزہ کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ شرمائی ہوئی نظریں نیچے جھکائے بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اس کے کانوں میں ایک زوردار کڑک آواز پہنچی۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں آلیان کی تھی جو اس سے کہہ رہا تھا کہ تم اس طرح شرمانے کا ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ فائزہ نے جب آلیان کی اتنی غصے والی آواز سنی تو وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ سہمی ہوئی سوچ میں پڑ گئی کہ اس قدر احساس کرنے والا لڑکا ایسا بھی لہجہ رکھتا ہے۔ آلیان نے پھر سے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یتیم خانوں میں اور دوسرے مردوں کو رجھاتے ہوئے، انہیں بہلاتے ہوئے تو تمہیں شرم نہیں آتی ہوگی۔ آلیان کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر فائزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ یہ بات بہت اچھی طرح سے جان چکی تھی
کہ आलियान उसे एक अच्छी लड़की नहीं समझ रहा था। वो फ़ायज़ा को भी उन्हीं लड़कियों की तरह समझ रहा था जो यतीम खाने में ऐसा काम करती थी। फ़ायज़ा आंखों में आंसू लिए आलियान को अपनी पाक दामनी का यकीन दिला रही थी, मगर आलियान उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने यतीम खाने में ये सब कुछ होते हुए देखा था। यतीम खाने में ऐसे कई मनाजिर देखने को मिलते थे। आलियान फ़ायज़ा को भी उन्हीं लड़कियों की तरह समझ रहा था, मगर फ़ायज़ा बेकसूर थी। फ़ायज़ा का ऐसा कोई सीन नहीं था। अब फ़ायज़ा उसे यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर आलियान उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। फिर एक दिन फ़ायज़ा ने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी। ये कहानी एक नन्ही सी बच्ची फ़ायज़ा की है। फ़ायज़ा एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती थी। फ़ायज़ा के अब्बा चारपाई बुनने का काम करते थे। फ़ायज़ा के अब्बा की आमदन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो घर को चला सकते, इसलिए फ़ायज़ा की अम्मा, जो घरेलू खातून होने के साथ साथ सिलाई और कढ़ाई का काम जानती थी, वो मेहनत मजदूरी करके अपने शौहर का घर चलाने में हाथ बटाया करती थी। फ़ायज़ा की अम्मा और अब्बा दोनों मिलकर अपने घर का अच्छे तरीके से गुज़र बसर कर रहे थे। शादी के कुछ अरसे बाद जब अल्लाह ने उन्हें फ़ायज़ा से नवाजा था, तो उनके घर में एक खुशी का समा बन गया था। फ़ायज़ा के अम्मा और अब्बा दोनों फ़ायज़ा को पाकर बेहद खुश थे, क्योंकि शादी के 5 साल बाद अल्लाह ने उन्हें इस खुशी से नवाजा था। इसलिए फ़ायज़ा उनकी इकलौती बेटी होने के साथ साथ लाडली भी थी। फ़ायज़ा के अब्बा बचपन से ही फ़ायज़ा के नाज नखरे उठाते चले आ रहे थे। फ़ायज़ा बचपन से ही बेहद खूबसूरत और नाजुक लड़की थी। फ़ायज़ा की खूबसूरती के चर्चे उसके सब रिश्तेदार किया करते। फ़ायज़ा अपने सब रिश्तेदारों, अजीज़ों अकारिब की लाडली और चहीती थी। फ़ायज़ा को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बेहद शौक़ था, इसीलिए फ़ायज़ा हमेशा अपनी क्लास में अच्छे नंबर हासिल करके सबका दिल खुश कर देती। फ़ायज़ा अपने अखलाक की वजह से जल्द ही सबके दिल में जगह बना लेती थी। उसके अब्बा सिर्फ 2 भाई थे। दोनों ही शादीशुदा थे और शादी के बाद अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। फ़ायज़ा के चचा की अपनी तो कोई औलाद ना थी, लेकिन वो फ़ायज़ा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उन्होंने बचपन में फ़ायज़ा को अपने बच्चों की तरह ही पाला था। उसके चचा और चच्ची फ़ायज़ा पर जान निछावर करते। इस लिहाज से फ़ायज़ा बहुत खुशकिस्मत थी। वो हर एक की आंखों की रोशनी और दिल की ठंडक थी। हर कोई उसे प्यार और मोहब्बत के अलावा बहुत अहमियत देता नज़र आता था। घर में चाहे कितनी भी परेशानी होती, लेकिन फ़ायज़ा के अब्बा और अम्मा उस परेशानी को फ़ायज़ा तक नहीं पहुंचने देते थे। परेशानी क्या होती है ये फ़ायज़ा को मालूम ही नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी अपने माँ बाप के साथ गुजार रही थी। अपने माँ बाप के होते फ़ायज़ा ने कभी भी किसी मुश्किल या परेशानी का सामना नहीं किया था। माँ बाप ने उसे अपनी हथेली का छाला बना कर रखा हुआ था। फ़ायज़ा उन खुशकिस्मत बेटियों में से एक थी जो अपने माँ बाप के घर की रौनक होती हैं और अपने माँ बाप के दिल पर राज करती हैं। ऐसे ही ज़िंदगी को एक अलग अंदाज से जीते जीते फ़ायज़ा ने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया था। फ़ायज़ा की कामयाबी देखकर सब लोग बहुत खुश थे। आज फ़ायज़ा बहुत खुश थी, क्योंकि फ़ायज़ा आज काफ़ी दिनों बाद अपनी करीबी सहेली से मिलने जाने वाली थी। फ़ायज़ा आज पूरे 14 साल की होने वाली थी। सब घर वाले फ़ायज़ा की सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहे थे, मगर फ़ायज़ा के लिए ये सब सरप्राइज़ था। फ़ायज़ा इस बात से बेखबर थी कि आज उसकी सालगिरह मनाने के लिए सब उसे सरप्राइज़ देने वाले हैं। फ़ायज़ा अपनी एक करीबी सहेली के यहाँ गई हुई थी जब फ़ायज़ा के चचा और अब्बा ने मिलकर फ़ायज़ा की सालगिरह प्लान की थी। फ़ायज़ा की सहेली को सब मालूम था। उसने फ़ायज़ा को तब तक अपने पास रोके रखना था जब तक सालगिरह का सारा इंतज़ाम ना हो जाता। जब हर चीज़ का बखूबी इंतज़ाम हो गया और सब ने महसूस किया कि अब फ़ायज़ा को घर आ जाना चाहिए, तो फ़ायज़ा की सहेली को फ़ोन करके फ़ायज़ा को घर बुला लिया गया था।
फायजा की सहेली भी फायजा के हमरा घर आई थी। फायजा इस बात को देखते हुए बहुत हैरान थी, क्योंकि सोहा कभी भी फायजा के घर ऐसे अचानक नहीं आई थी। आज वो स्पेशल तैयार होकर फायजा के साथ उसकी सालगिरह मनाने के लिए आ रही थी, और फायजा इस बात से बेखबर थी। जैसे ही फायजा ने घर का दरवाज़ा खटखटाया और उसके चच्चा ने जाकर दरवाज़ा खोला, तो फायजा हैरान रह गई, क्योंकि उसके चच्चा भी अचानक ही उनके घर आए थे। वो अपने चच्चा से मिलते हुए घर के अंदर दाखिल होने लगी। घर में घुप अंधेरा था, चारों तरफ रोशनी की हल्की सी किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी फायजा ने अपने चच्चा से मुखातिब होते हुए कहा कि चच्चा जान, पूरे घर में अंधेरा क्यों है? क्या लाइट गई हुई है? चच्चा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगे कि मैं अभी आता हूँ, मुझे लगता है कि लाइट गई है। चलो मैं मोबाइल की रोशनी करता हूँ, तुम ध्यान से अंदर चलो। फायजा दबे दबे पाँव अंदर जाने लगी थी। जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा, तो एकदम से चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देने लगी। फायजा के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। सबने बहुत हल्ला गुल्ला किया, और फायजा को खुशी का एक ज़ोरदार झटका लगा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी 14वीं सालगिरह इतनी धूमधाम से मनाई जाएगी। फायजा बहुत खुश थी। वो अपने अम्मा और अब्बा का बेहद शुक्रिया अदा कर रही थी। सबने मिलकर केक काटा और फायजा की इसी खुशी में सब खुश होते नजर आ रहे थे। फायजा बहुत प्यारी लग रही थी। उसके लंबे लंबे बाल, मोटी मोटी आंखें और गाल पर काला तिल उसकी खूबसूरती में इजाफा करता दिखाई देता। सबकी नज़र फायजा पर थी। सब उसको हसरत भरी नज़रों से देख रहे थे। तभी उसके चच्चा ने उसके अब्बा से उसके रिश्ते की बात की थी। फायजा के चच्चा अपने बेटे के लिए फायजा का रिश्ता के ख्वाहिशमंद थे, मगर उसकी अम्मा ने अपने देवर से कहा कि अभी तो फायजा बहुत छोटी है, अभी तो हमने इसकी शादी के बारे में सोचा भी नहीं, वो अभी पढ़ना चाहती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके रिश्ते की बात उसके सामने करना मुनासिब है, क्योंकि इस तरह की बातें अगर बच्चियों के सामने की जाएं तो उनके दिलो दिमाग में कुछ बातें बैठ जाती हैं और फिर वो अच्छे से अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे पाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस किस्म की कोई भी बात फायजा के सामने ना की जाए। फायजा के चच्चा को ये बात बहुत बुरी लगी थी। उनको अपनी भाभी से इस किस्म के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो बहुत मान से अपनी बीवी को कह चुके थे कि फायजा की शादी का फैसला करने का मुझे पूरा हक है, लेकिन यहाँ तो फायजा की अम्मा ने सारी गेम ही बदल कर रख दी थी। फायजा की अम्मा उस लड़के को कभी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उनकी मासूम और नाजुक सी बेटी की शादी उस जाहिल इंसान से की जाए। इसलिए अपने देवर को टालते हुए उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया था। लेकिन फायजा के चच्चा बहुत अच्छे से समझ गए थे कि उसकी अम्मा ने रिश्ते से इनकार क्यों किया था। सालगिरह का फंक्शन ख़त्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घरों में चले गए, और फायजा के चच्चा तो सालगिरह ख़त्म होने से पहले ही नाराज़गी का इजहार करते हुए अपने घर चले गए थे। जैसे ही सालगिरह का फंक्शन ख़त्म हुआ, फायजा के अब्बा ने अपनी बीवी से मुखातिब होते हुए कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया रिश्ते से इनकार करके, और भी बहुत सारे तरीके थे, तुमने साफ ही मेरे भाई को रिश्ते से इनकार कर दिया। अब वो न जाने अपने दिल में कौन कौन सा वहम पालेगा। फायजा की अम्मा ने सख्त लहजे में अपने शौहर को जवाब दिया कि मेरी एक ही एक बेटी है और सबसे ज़्यादा लाडली और नाजों से पली। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वो कभी सख्त ज़िंदगी गुजारे। वो लड़का मुझे एक आंख नहीं भाता। मैं कैसे उस जाहिल और गंवार लड़के के साथ अपनी बेटी का ब्याह रचा दूँ। वो एकदम आवारा और निकम्मा लड़का है। ना वो कोई काम काज करता है और ना ही उसे ये पता है कि बड़ों या छोटों से बात कैसे करते हैं। फायजा की अम्मा अब्बा के दरमियान आज पहली दफ़ा फायजा को लेकर थोड़ी बहस हुई थी। फायजा ये सारी बहस सुन रही थी, लेकिन वो बड़ों की बातों में नहीं बोलती थी। उसकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो ज़्यादातर खामोशी इख्तियार किए रखती। वो बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं थी।
فائزہ بچپن سے ہی بہت شرمیلی اور چپ چپ رہنے والی سگڑ لڑکی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، فائزہ کے چچا کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا چلا گیا۔ فائزہ کے چچا نے پھر سے گھر میں آنا جانا شروع کر دیا، لیکن فائزہ کی چچی ابھی بھی ناراض تھی۔ وہ اپنے بھائی کو رشتہ نہ دینے کی وجہ سے فائزہ کے اماں ابا کے گھر آنا جانا بالکل چھوڑ گئی تھی۔ فائزہ کے چچا کیونکہ فائزہ سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے اس کی محبت انہیں گھر تک کھینچ لائی تھی۔ اب وہ فائزہ سے ملنے آتے ضرور تھے، لیکن وہ رشتے کی کوئی بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ فائزہ کی اماں نے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ فائزہ عمر میں تو بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی، لیکن ذہنی طور پر وہ ابھی بھی بچوں والا دماغ رکھتی تھی۔ اسے ہوشیاری چالاکی بالکل نہیں آتی تھی۔ ایک دن فائزہ کے ابا کو کسی ضروری کام سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ فائزہ کے ابا نے اس کی اماں سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، میں موٹر سائیکل پر اکیلا تھک جاتا ہوں، تمہارا ساتھ ہوگا تو مجھے سفر کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ فائزہ کی اماں بھی اپنے شوہر کی بات سنتے ہوئے مسکرانے لگی اور جلدی سے تیار ہونے لگی۔ فائزہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کی اماں نے اس کو نصیحت کی کہ دروازہ مت کھولنا اور تم سوہا کو اپنے پاس بلا لو، دونوں بہنیں گھر میں رہنا اور خوب انجوائے کرنا۔ فائزہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے اپنی قریبی سہیلی سوہا کو فون کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ سوہا کے آنے کے بعد اس کے ابا اور اماں اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ جیسے ہی اس کے اماں ابا گھر سے نکلے تو موسم نے اچانک سے اپنے تیور دکھانے شروع کر دیے۔ موسم اچانک سے خراب ہونے لگا۔ تیز آندھی اور بارش نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فائزہ کے ابا اور اماں کیونکہ موٹر سائیکل پر سفر کر رہے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک ڈھابے کے پاس اپنی موٹر سائیکل روک لی، اور وہ ایک چائے کا ڈھابا تھا۔ فائزہ کے ابا چائے کے بہت شوقین تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم کچھ دیر اس ڈھابے پر رک جائیں اور ایک ایک کپ گرما گرم چائے پی لیں، تب ہو سکتا ہے بارش بھی تھم جائے، پھر ہم اپنے اگلے سفر کے لیے نکلیں گے۔ فائزہ کی اماں بہت خوش ہوئی تھیں۔ وہ آج پہلی دفعہ اپنے شوہر کے ساتھ اتنے لمبے سفر پر ایسے موسم میں نکلی تھیں۔ وہ موسم کو بہت انجوائے کر رہی تھیں۔ ڈھابے پر ایک گرم گرم پیالی چائے کی پینے کے بعد انہوں نے دوبارہ سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ بارش رکی تو نہیں، مگر پہلے سے تھوڑی کم ہو گئی تھی۔ فائزہ کے ابا نے موٹر سائیکل کو کک مارتے ہوئے اپنا سفر شروع کیا۔ جیسے ہی فائزہ کے ابا سنسان سڑک پر پہنچے تو بارش پھر سے تیز ہونے لگی۔ اس سڑک کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا، اسی لیے اس کے ابا نے رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ شدید بارش میں انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ دوسری طرف فائزہ بہت پریشان تھی، کیونکہ رات ہونے کو تھی اور موسم ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ بارش ابھی تک مسلسل ہو رہی تھی۔ فائزہ اپنے ماں باپ کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، لیکن ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ فائزہ کی سہیلی نے اسے اجازت لی اور کہا کہ رات بہت ہو رہی ہے، مجھے بھی وقت پر گھر جانا چاہیے۔ فائزہ نے اسے جانے دیا تھا اور خود اکیلی اپنے ماں باپ کا انتظار کرنے لگی۔ فائزہ کو اپنے گھر سے بہت خوف آ رہا تھا، کیونکہ وہ کبھی اکیلی رہی نہیں تھی۔ تبھی فائزہ بار بار اپنے ابا کو فون ملا رہی تھی، لیکن کوئی بھی فون اٹھا نہیں رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بارش کی وجہ سے ابا فون نکال نہیں پا رہے ہوں گے، مگر فائزہ کا دل بہت پریشان تھا۔ اس کا دل بہت بے چین تھا۔ اسے عجیب قسم کی بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ رات کے 2 بج گئے تھے۔ تب فائزہ رونے لگی تھی، کیونکہ اس کی اماں ابا نے آج تک اس کو لے کر ایسی لاپرواہی نہیں دکھائی تھی۔ فائزہ زاروں قطار رو رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلدی سے اماں ابا آ جائیں، اور اس نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی اماں ابا آئیں گے میں ان سے بہت ناراض ہوں گی اور ان سے کہوں گی کہ آپ کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں، آدھی رات تک مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانے آپ کہاں گم ہو گئے تھے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوتی محسوس ہوئی۔ فائزہ روتی ہوئی فوراً سے پہلے آنسو صاف کرتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑی۔ جیسے ہی اس نے جا کر دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ باہر اس کے اماں ابا موٹر سائیکل پر نہیں
बल्कि एक एम्बुलेंस में लाए गए थे। फायजा अपने दरवाजे के आगे एम्बुलेंस देखकर परेशान हो गई। खौफ के मारे दरवाजे के पीछे छुपने लगी। तभी मोहल्ले के कुछ लोगों ने फायजा से कहा कि बेटी दरवाज़ा खोल दो और अंदर चली जाओ। फायजा दरवाज़ा खोलते हुए अपने कमरे के अंदर जाने लगी थी, मगर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी कि किस्मत ने उसके साथ क्या खेल खेला है। फायजा कमरे के अंदर जाकर दरवाजे से छुपकर बाहर देखने लगी तो वो बाहर का नज़ारा देखते हुए चीखें मार मार कर रोने लगी, क्योंकि स्ट्रेचर पर उसके अम्मा और अब्बा की डेड बॉडी थी। फायजा अपने माँ बाप को ऐसी हालत में देखकर चीख चीख कर रोने लगी। वो रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। मोहल्ले की कुछ औरतों ने फायजा को संभालने की कोशिश की, लेकिन फायजा अपना आप खो चुकी थी। वो बहुत तकलीफ़ में थी। उसकी तकलीफ़ को कोई और महसूस कर ही नहीं सकता था। माँ बाप का दुख क्या होता है उससे ज़्यादा इस वक्त कोई नहीं समझ सकता था। उसने तो कभी अपने माँ बाप के बग़ैर 1 मिनट जीने का तसव्वुर नहीं किया था। अब उसे ये कैसी सज़ा मिल रही थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके माँ बाप उसे इस तरह अचानक तन्हा छोड़कर चले जाएंगे। एम्बुलेंस जाने के बाद मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए और फायजा को तसल्ली देने लगे, लेकिन फायजा गम से नढाल थी। उसके चचा को खबर कर दी गई थी। कुछ ही देर बाद फायजा के चचा भी उनके घर आ गए। वो भी अपने भाई और भाभी को देखकर गम से नढाल थे, क्योंकि उसके चचा अपने भाई से बहुत मोहब्बत करते थे और उनका बहुत एहतराम करते थे। फायजा तो किसी से भी संभाले नहीं संभल रही थी। फायजा के सवालों ने पूरे मोहल्ले को रुला दिया था। फायजा अपने अम्मा और अब्बा की मैयत के साथ लिपटती हुई रो रही थी और मुसलसल अपने अम्मा अब्बा से कह रही थी कि ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। आप लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। आज आप मुझे सारी ज़िंदगी के लिए छोड़कर जा रहे हैं। अम्मा अब्बा, मैं किसके सहारे जीऊँगी? आपने एक दफ़ा भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? मेरा इस दुनिया में कौन है? तभी फायजा के चचा ने उसके सर पर हाथ रखते कहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारा चचा भी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? वो जितनी लिखवा कर आए थे अपना वादा पूरा करके वापस चले गए। उनकी रूह को तकलीफ होगी, इस तरह मत बोलो। फायजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ किस्मत ने क्या खेल खेला था। तदफीन के बाद सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। अब फायजा इस घर में बिल्कुल तने तन्हा थी। उसके चचा ने यही फैसला किया कि फायजा को अपने साथ अपने घर ले जाएं। फायजा की चच्ची उसकी अम्मा और अब्बा की वफ़ात पर नहीं आई थी। वो रिश्ते को लिए हुए ही अपनी नाराज़गी कायम किए थी। फायजा का घर भी किराए का था, इसीलिए उसके चचा ने उसको अपने साथ रखना मुनासिब समझा। सब मोहल्ले वालों को रजामंदी के साथ फायजा को उसके चचा के यहाँ भेज दिया गया। फायजा अपने चचा के यहाँ रहने लगी। फायजा अपने माँ बाप की याद में नढाल रहती। उसने बिल्कुल बोलना छोड़ दिया था। एक तो उसे अपने माँ बाप के जाने का दुख था, दूसरा चच्ची ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। चच्ची उसे एक आंख भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करती थी। चच्ची ने उस पर तरह तरह के जुल्म ढाने शुरू कर दिए। चच्ची अपने शौहर को भी हर वक्त बुरा भला कहती रहती और कहती कि इस सज़ा को लाकर मेरे सर पर बिठा दिया। माँ इसे अपने साथ कब्र में ही ले जाती ना, जिसने मेरे हीरे जैसे भाई को रिश्ता देने से इनकार किया था। तभी फायजा के चचा ने कहा कि तुम इस बात को लेकर अभी तक अपने दिल में जहर भरे हुए हो। उसकी माँ ने उसका भला चाहा या बुरा चाहा, उन्होंने रिश्ता नहीं दिया। वो इसकी माँ थी। तुम अभी तक क्यों इस बात को दिल से लगाए बैठी हो? तुम्हारे भाई की शादी तो हो गई है, फिर तुम क्यों इस तरह का सलूक कर रही हो? लेकिन चच्ची को बदला लेने से बाज नहीं आ रही थी। चच्ची को तो फायजा एक आंख नहीं भाती थी। इसीलिए चच्ची ने अपने शौहर को मजबूर किया कि फायजा को किसी यतीम खाने में भेज दिया जाए। फायजा के चचा उसे कहीं भेजने के लिए रजामंद नहीं थे, लेकिन रोज़ रोज़ की खिच खिच और परेशानियों से तंग आ चुके थे। उनके सर का दर्द नहीं जाता था। एक रात
वो अपनी भतीजी के बारे में गहरी सोच में डूबे हुए थे कि तभी उनके सीने में अचानक से दर्द हुआ। एक हार्ट अटैक से ही वो अपने खाले के हकीकी से जा मिले। फायजा से अपने चचा जैसे बाप की शफकत का हाथ भी उठ चुका था। अब चच्ची किसके मुंह को उसे अपने पास रखती। चच्ची ने फायजा को बुरा भला कहते हुए घर से निकालने का फैसला कर लिया। तभी फायजा ने रोते हुए अपनी चच्ची से कहा कि मुझे घर से ऐसे ना निकालें। अगर आपने मुझे नहीं रखना तो आप मुझे किसी यतीम खाने भेज दें। फायजा की चच्ची बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि यतीम खाने के हालात कैसे हैं। फिर भी उन्होंने अपने दिल में ये बात सोची कि उसके लिए इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं। उन्होंने एक शहर के बहुत बड़े यतीम खाने में फायजा को भेज दिया था। फायजा को यतीम खाने में अभी कुछ दिन हुए थे। वो यतीम खाने में बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अपनी किस्मत को हर वक्त रोती रहती थी। वो अपने माँ बाप के साथ गुजारे हुए पल याद करती और फूट फूट कर रोने लगती। फायजा अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखकर बहुत खौफजदा हो गई थी, क्योंकि यतीम खाने में अक्सर ही अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात सुनने को और देखने को मिलते थे। फायजा इन सब बातों से अनजान थी, मगर दुनिया ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। धक्के और थपेड़े उसे बहुत कुछ समझा गए थे। यतीम खाने की लड़कियों के साथ बहुत अजीबो गरीब किस्म का सलूक किया जाता। फायजा क्योंकि अभी नई नई थी, इसीलिए उसे अभी इन कामों में नहीं उलझाया गया था। एक दिन शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन आलियान यतीम खाने में खैरात बांटने आने वाला था। वो अक्सर ही यतीम खाने में खैरात बांटने आया करता था। आलियान अमीर होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी था। आलियान ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ साथ एक खूबसूरत दिल भी रखता था। वो गरीबों, मोहताजों और मिस्कीनों की मदद करके बहुत खुश हुआ करता। आलियान की कोशिश होती थी कि वो अपने बिजनेस से बचा हुआ टाइम गरीब गुरबा लोगों में बैठकर गुजारे। फायजा का भी यतीम खाने आए कुछ अरसा गुजरा था। सारे यतीम खाने में भगदड़ मची हुई थी। हर कोई उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। फायजा गुमसुम उदास एक कोने में बैठी थी। तभी वार्डन ने आकर फायजा से कहा कि तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, आलियान खान आने वाला है। फायजा हैरान होकर वार्डन का मुंह देखने लगी। तभी वार्डन ने बताया कि आलियान खान यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और अमीरज़ादा है। वो हर इतवार यतीम खाने में उन गरीब और यतीम बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारने आता है और ढेरों ढेर खैरात बांट कर जाता है। वार्डन बताने लगी कि इस यतीम खाने को सबसे बड़ा डोनेशन आलियान खान की तरफ से ही आता है। छोटे बड़े जवान लड़कियां सब आलियान के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फायजा देखकर हैरान थी कि जवान लड़कियां ऐसे खुद को सजा बुझा रही थी जैसे वो लड़का उन्हीं के लिए आ रहा हो। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि जैसा माहौल यहाँ का है और जैसे अमीरज़ादे यहाँ अपनी गैर ज़रूरी ख्वाहिशात को पूरा करने आते हैं, आलियान भी उनमें से ही एक होगा। इसलिए फ़ायज़ा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आलियान कैसा है और कौन है। वो खामोशी से एक कोने में बैठी रही थी। कुछ देर बाद उसने एक बहुत लंबी काले रंग की गाड़ी यतीम खाने के सहन में आती हुई देखी। गाड़ी आकर रुकी तो उसमें से एक बहुत लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान उतरा। लोग उसकी तरफ दौड़कर जाने लगे थे। सब लोग आलियान आलियान कहकर उसे पुकार रहे थे। वो समझ चुकी थी कि यही वो लड़का है जिसका बेसब्री से पूरा यतीम खाने का अमला और लोग इंतज़ार कर रहे थे। फ़ायज़ा दूर बैठी आलियान को देख रही थी। आलियान सबको अपने पास बुलाकर प्यार मोहब्बत से खैरात बांट रहा था। तभी उसकी नज़र इस खूबसूरत हसीन चेहरे पर पड़ी। आज से पहले उसने यतीम खाने में इतना हसीन चेहरा नहीं देखा था। आलियान ने जैसे ही फ़ायज़ा को देखा तो देखता ही रह गया। आलियान की नज़र फ़ायज़ा पर थी और हाथ खैरात बांटने में मसरूफ़ थे। आलियान पहली ही नज़र में अपना दिल फ़ायज़ा पर हार बैठा था। आलियान ने वक्त ज़ाया ना करते हुए वार्डन से फ़ायज़ा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली। तभी आलियान ने वार्डन से कहा कि इस लड़की को भी कहें कि आकर खैरात ले ले।
مگر فائزہ نے اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ دور اسی کونے میں بیٹھی رہی۔ آلیان نے وارڈن سے کہا کہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کرنا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وارڈن نے آلیان کو فائزہ کے متعلق سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ آلیان کی نظروں کے سامنے فائزہ کا معصوم چہرہ ہٹتا ہی نہیں تھا۔ وہ تو فائزہ کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کو اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے صرف فائزہ ہی نظر آتی تھی۔ آلیان نے وارڈن سے کہہ کر فائزہ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور فائزہ سے اس کی رضامندی جاننے کی کوشش کی تھی۔ یتیم خانے کی سب لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ ہر لڑکی یہی چاہتی تھی کہ وہ آلیان کی شریک حیات بنے، مگر یہ خوش قسمتی سب کے لیے نہیں تھی۔ یہ پروپوزل صرف اور صرف فائزہ کے لیے تھا۔ آلیان نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فائزہ سے پوچھا کہ کیا وہ اس سے نکاح کرے گی۔ فائزہ نے شرماتے ہوئے وارڈن کو اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ وارڈن نے آلیان کو بتایا کہ فائزہ اس رشتے سے خوش ہے اور وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ آلیان نے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے جلدی سے فائزہ کے ساتھ نکاح کیا اور اسے اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر لے گیا۔ آلیان فائزہ کو گھر چھوڑ کر خود کچھ سامان لینے باہر چلا گیا۔ فائزہ اب پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں اکیلی بیٹھی آلیان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب آلیان گھر نہ آیا تو فائزہ پریشان ہونے لگی۔ فائزہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی آلیان کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اسے اپنے ابا والا واقعہ یاد آ رہا تھا، اسی لیے وہ آلیان کے لیے بھی پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی، اتنا محبت کرنے والا شوہر عطا کیا ہے تو اسے صحیح سلامت میرے پاس بھیج دو۔ ابھی اس نے یہ دعا کی ہی تھی کہ باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ فائزہ سمجھ گئی تھی کہ آلیان گھر آئے ہیں۔ فائزہ گھونگھٹ گرائے، نظریں نیچے جھکائے آلیان کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی آلیان نے کمرے میں قدم رکھا تو فائزہ شرمانے لگی۔ وہ بھی اسی انتظار میں تھی کہ آلیان کوئی بات کرے۔ آلیان خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا اور سامنے صوفے پر بیٹھ کر مسلسل فائزہ کو دیکھنے لگا۔ فائزہ خوفزدہ ہونے لگی تھی کیونکہ آلیان صرف اسے حیران دیکھے جا رہا تھا اور کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ فائزہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ آلیان اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ تبھی شرماتے ہوئے فائزہ نے نگاہیں نیچے کی تو اچانک سے اس کے کانوں میں ایک کڑکتی آواز پڑی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں آلیان کی تھی، جو غصے بھرے لہجے سے فائزہ کو مخاطب کر رہا تھا۔ آلیان فائزہ سے کہہ رہا تھا کہ تم اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ فائزہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے اپنی نظریں نیچے جھکائے رکھی، لیکن فائزہ اس کی غصے بھری آواز سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ فائزہ کا کوئی جواب نہ پاتے ہوئے آلیان کو بے حد غصہ آنے لگا۔ آلیان نے فائزہ سے کہا کہ یتیم خانے میں تو مردوں کو بہلاتے ہوئے کبھی شرمائی نہیں ہوگی، اور یہاں پر تمہیں شرم آ رہی ہے۔ اپنا گھونگھٹ اٹھاؤ اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کرو۔ آلیان اسے یتیم خانے کے طعنے دے رہا تھا۔ وہ اسے مسلسل یہی بات کہہ رہا تھا کہ وہاں غیر مردوں کا دل رجھانا آتا تھا، ان کو بہلانا آتا تھا، اور یہاں اپنے شوہر کے سامنے تم نظریں جھکائے ایسے معصوم بنے بیٹھی ہو جیسے تم نے کبھی کوئی غلط کام ہی نہ کیا ہو۔ اتنی پاکیزہ بننے کی ضرورت نہیں۔ میں سب کچھ جانتا ہوں اس یتیم خانے کے بارے میں۔ وہاں کی ہر کہانی میری نظروں سے ہو کر گزرتی ہے۔ تم مجھے پاگل بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اپنا یہ پاک دامن اور اپنی شرمیلی ادا سے تم میرا دل نہیں جیت سکتی۔ فائزہ نے جب آلیان کی ایسے الفاظ سنے تو وہ دنگ سی رہ گئی تھی۔ وہ حیران پریشان یہ سوچنے لگی کہ آلیان پہلے تو شادی کے لیے اتنا بے چین نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شادی سے پہلے تو میرے لیے بہت محبت اور چاہت نظر آتی تھی۔ اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس قدر زہر اگل رہا تھا؟ فائزہ یہ سوچ کر رونے لگی تھی۔ وہ بہت اچھے سے جان چکی تھی کہ آلیان نے اسے غلط لڑکی سمجھا ہے۔
वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और सोचने लगी कि अब मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं वैसी लड़की नहीं हूं जैसी वो मुझे समझ रहा है। फ़ायज़ा की आंखों में आंसू भर आए थे। वो आंसुओं से भरी हुई आंखों से नज़रें उठाकर आलियान की तरफ देखने लगी और आलियान से कहने लगी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आपकी सोच मेरे बारे में बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा आपने मेरे बारे में सोचा है। मगर आलियान उसे मुसलसल धुतकारे जा रहा था और फ़ायज़ा बेबस बैठी अपने नसीबों को रो रही थी। फ़ायज़ा अपनी जगह से उठी और आलियान के कदमों में जाकर उसको अपनी बेगुनाही का सबूत देने लगी, मगर वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी फ़ायज़ा रोती हुई आलियान के पाँव में जा बैठी और कहने लगी, मैं मानती हूँ कि यतीम खाने में बहुत सी लड़कियाँ ऐसे काम करती हैं, लेकिन वो लड़कियाँ वही थीं जो शुरू से यतीम खाने की रहने वाली थीं। मुझे तो अभी जुम्मा 8 दिन हुए थे यतीम खाने आए हुए। मेरे साथ ऐसा कोई भी मामला पेश नहीं आया था, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही थी। इसी वजह से मेरे साथ कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ। आलियान हैरान होकर फ़ायज़ा की तरफ देखने लगा। वो ज़ारो कतार रो रही थी। आलियान उसकी शक्ल देख रहा था। उस पर फ़ायज़ा के आंसुओं का भी कोई असर नहीं हो रहा था। फ़ायज़ा खुद को बेबस महसूस कर रही थी। आलियान न जाने किसका गुस्सा उस पर निकाल रहा था। आलियान उसे कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चला गया। फ़ायज़ा अकेली रोती रही। फ़ायज़ा ने सारी रात आलियान के इंतज़ार में गुजार दी, मगर आलियान का दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी। फ़ायज़ा हिम्मत करते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। जैसे ही उसने टीवी लाउंज में कदम रखा तो उसको इस बात का एहसास हुआ कि वो घर में बिल्कुल अकेली है। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होने लगी थी। वो अपने अम्मा अब्बा को याद करके रोने लगी और दिल में सोचने लगी कि मैंने क्या किस्मत पाई है। अगर माँ बाप का प्यार मिला था तो वो छिन गया, चच्चा का मिला तो वो छिन गया। वो सोचने लगी कि आज अगर आलियान की शक्ल में मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आई तो आज आलियान भी मुझसे मिलने से पहले ही मुझसे छिन गया है। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी कि तभी अचानक से टीवी लाउंज का दरवाज़ा खुला। उसने आलियान को अपनी तरफ आते देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। वो सहमी हुई सीढ़ियों पर ही बैठ गई थी। आलियान उसके करीब आया। फ़ायज़ा उसे अपने इतने करीब पाकर बहुत घबरा गई थी। तभी आलियान ने उससे कहा, तुम अपने बारे में मुझे सब कुछ सच सच बताओ। आलियान उसके माँ बाप के बारे में जानना चाहता था। फ़ायज़ा कांपती हुई आवाज़ में आलियान को अपनी सारी कहानी सुनाने लगी। उसने अपने माँ बाप के बारे में सारी बात आलियान को बताते हुए कहा कि मुझे अभी चंद दिन पहले ही मेरी चच्ची ने यतीम खाने में भेजा था। मेरा भरोसा कीजिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप मुझे समझ रहे हैं। मैंने आज तक कभी नज़र उठाकर किसी गैर मर्द को नहीं देखा। अगर मैं इस तरह की होती तो पहले दिन जब आप मुझे बार बार खैरात देने के लिए बुला रहे थे तो मैं फ़ौरन से आपका दिल बहलाने चली आती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे ये सब करना नहीं आता था और मैं कभी भी गैर मर्दों में दिलचस्पी नहीं रखती थी। आलियान खामोशी से उसकी सारी बात सुनने के बाद कहने लगा कि फिर तुमने फ़ौरन से मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? फ़ायज़ा ने आलियान को बताया कि मैं अपने अम्मा अब्बा का सदमा अपने दिलो दिमाग पर सवार किए हुए थी। ऊपर से चच्ची के जुल्मों ने मुझे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। जब मैं यहाँ यतीम खाने में आई तो मैंने यहाँ का माहौल देखते हुए सोच लिया था कि मेरी ज़िंदगी का एंड यही है। मैं खुद को जान से मार देती, मगर वो काम कभी ना करती जो वो लोग मुझसे करवाना चाहते थे, क्योंकि सब कहते थे कि ये बहुत खूबसूरत है और इस पर दिल हारने वाले बहुत से लोग होंगे और हमें बहुत सा पैसा फ़ायज़ा के ज़रिए मिल जाएगा। मैं अपनी वार्डन और इर्द गिर्द के अमले से ये बातें सुनती रहती थी, लेकिन मैं गहरे सदमे में थी। इस वजह से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दूर दूर तक नज़र नहीं आती थी। यही वजह थी कि वो लोग अब तक मुझे किसी के सामने
जाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करते थे, ना ही मुझे किसी के पास भेजते थे। फिर अचानक से जब मुझे वार्डन ने आपकी बात बताई और कहा कि आप पहली ही नज़र में मुझ पर अपना दिल हार बैठे हैं और आप मुझे यहाँ से ले जाएंगे, तो मैंने अपनी इज़्ज़त को बचाने की खातिर आपसे शादी के लिए हाँ कर दी थी। मैं ये जानती थी कि आप शादी करके मुझे अपने साथ ले जाएंगे तो फिर आपकी शरीके हयात होंगी। आप जो चाहें मेरे साथ सलूक कर लें, लेकिन यहाँ पर तरह तरह के मर्दों के हाथों जलील होने से तो बेहतर था कि मैं आपके हाथों में आ जाती। यही सोचते हुए मैंने शादी के लिए हाँ की थी। उसके अलावा मेरा आपसे शादी करने का और कोई मकसद नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मेरी जान और इज़्ज़त दोनों बच जाएं। मगर अफसोस आपने मुझे उन्हीं लड़कियों की तरह समझा। फ़ायज़ा रोते हुए आलियान से कहने लगी कि अगर आप यतीम खाने के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मेरा इस किस्म का कोई मामला नहीं था। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मेरा दामन बिल्कुल साफ़ है। मेरे दामन पर किसी किस्म का कोई दाग नहीं लगा। अगर आपको मेरे अंदर कोई गलती नज़र आ रही थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आलियान फ़ायज़ा का ये सवाल सुनकर मुस्कुराने लगा और फ़ायज़ा से कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। फ़ायज़ा हैरान होकर उसका चेहरा देखने लगी और कहने लगी कि फिर सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, मैं उसकी वजह जान सकती हूँ? आलिया ने उसका हाथ अपने हाथों में थामा और उसे सोफे पर बिठाते हुए कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो और बेगुनाह हो। मैंने ये सब इसलिए किया कि मैं ये जानना चाहता था कि तुम किस कदर बहादुर और हिम्मत वाली हो। मुझे मेरी बीवी कमज़ोर और बुज़दिल नहीं चाहिए। मुझे हिम्मत और ताकतवर दिल रखने वाली बीवी चाहिए थी, जो दुनिया की मुश्किलात का सामना कर सके और दुनिया में आने वाली हर परेशानी के आगे डटी रहे। फ़ायज़ा उसकी बात सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी। तभी आलिया ने उसे अपने सीने के साथ लगाते हुए कहा कि तुम इस इम्तिहान में पास हो गई हो। मुझे इस बात का यकीन है कि चाहे कुछ भी हो, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। अगर तुम कमज़ोर और बुज़दिल होती तो पहली रात के किए गए मेरे गुस्से को बर्दाश्त नहीं करती और मुझे छोड़कर यहाँ से जा चुकी होती, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। आलियान मुसलसल फ़ायज़ा की तारीफ़ें कर रहा था। फ़ायज़ा फिर से शर्माने लगी थी। आलिया ने उसे अपने साथ लगाते हुए उसका ज़िंदगी भर साथ देने का वादा किया था। ऐसे फ़ायज़ा की मुश्किलात ने फ़ायज़ा से मुंह फेर लिया और खुशियों ने फ़ायज़ा की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसकी ज़िंदगी को 4 चांद लगा दिए थे। आज फ़ायज़ा अपने शौहर आलियान के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।